بریک کے بعد خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اونچی دکان پھیکا پکوان، کراچی میں معروف 5 اسٹار ہوٹل پر چھاپا، مضر صحت گوشت، کریم اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے سنجے۔ جی بالکل، فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ پی آئی ڈی سی کے قریب نجی معروف ہوٹل ہے 5 اسٹار، جس کی جب کچن پر فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا تو برآمد کیا ہے 25 کلو مضر صحت گوشت، اس کے علاوہ زائد مراز جو بٹر ہے، کریم، ان سمیت دیگر اشیاء جو ہیں وہ برآمد کی گئی۔ یہ بھی فوڈ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ فوڈ اتھارٹی آصف جان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انفیکشن کی گئی تو کچن میں واشنگ ایریا میں جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی صحت و اصولوں کے بالکل منافی پائے گئے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ان پر مقدمہ درج کرانے کے لیے سول جج جنوبی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرایا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ 3 دن پہلے ہم نے انہیں نوٹس جاری کیا تھا کہ ہم فوڈ اتھارٹی کی ٹیم آپ کا ہوٹل وزٹ کرے گی، لیکن اس کے باوجود اس 5 اسٹار ہوٹل سے 25 کلو مضر صحت گوشت برآمد ہوا ہے اور دیگر اشیاء جو صحت کے لیے نقصان دہ تھی وہ سپلائی کی جا رہی تھی۔ شکریہ سنجے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مخالفت، وفاقی کابینہ میں سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ ہو سکی۔ کابینہ نے سولر استعمال کرنے والے صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے سولر نیٹ میٹرنگ ریگولیشن سے متعلق مشاورت کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ہدایت کی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ شراکت داروں سے مشورے کے بعد سفارشات دوبارہ کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت صارفین سے 10 روپے فی یونٹ بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شکن تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس، وزیر توانائی اویس لغاری اور سینیٹر شبلی فراز میں تلخ کلامی۔ شبلی فراز نے سوال اٹھایا، 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا 40 روپے جگہ ٹیکس ہے؟ جس پر وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، ہم یہ کوشش نہ کریں تو 10 سال بعد آپ دگنی قیمت پر خریدیں گے، پھر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ جس پر شبلی فراز کا کہنا تھا، آپ کے وزیر اعظم نے کہا 8 روپے بجلی سستی کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوا؟ اویس لغاری نے جواب دیا، نہ میں نے اور نہ وزیر اعظم نے ایسا کچھ کہا ہے، آپ حقائق کے برعکس وزیر اعظم کو مس کوٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور آئی ایم ایف کی قسط ملا کر پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے معاشی اہداف کے حصول میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ پاکستان کی معیشت نے عالمی اعتماد بحال کیا۔ آئی ایم ایف اعلامیے میں اعتراف۔ اعلامیے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام کے لیے بہتر کارکردگی دکھائی۔ مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ 1 جولائی 2025 سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانا ہوگی۔ وزارت خزانہ نے بھی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق آئی ایم ایف نے معاشی اہداف کے حصول میں کارکردگی کو سراہا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس کریکشن کا ہدف کم کرنے کی پیشکش کی، میں نے منع کر دیا۔ اگر مان جاتا تو جتنا کام ہو رہا ہے سب رک جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے آئی ایم ایف کے ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ عالمی ادارے کے لوگ حیران پریشان تھے، یہ سب پاکستان میں ہوا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں آرمی چیف کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے۔ چیف آرم اسٹاف جنرل ناصر منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے، منی بجٹ کے بغیر آئی ایم ایف آگے نہیں چلے گا، منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ٹیکس کلیکشن وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا۔ آئی ایم ایف نے اپنے ریویو میں کہا اس ٹارگٹ کو کم کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں نے یہ بات مان لی تو یہ تمام جو کام شروع ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے، جہاں کرپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یہ سب بیٹھ جائیں گے۔ آئی ایم ایف جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ آئی مین از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سمویئر ایلس۔
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका ने कौमी सलामती के खिलाफ काम करने पर 8 मुल्कों की 70 बरामदी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान की 4 कंपनियां शामिल हैं। ताइवान, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिकी हुकूमत का यह दावा है कि जिन इदारों पर पाबंदियां लगाई गई वो अमेरिकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रहे हैं। मिटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद के गांव गुलाम मोहम्मद उन्नड़ में रिश्तेदारों का खातून पर तशद्दुद। रिश्तेदारों ने तशद्दुद करके खातून की दोनों टांगे तोड़ दी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मिटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद के गांव गुलाम मोहम्मद उन्नड़ में रिश्तेदारों का खातून पर तशद्दुद। रिश्तेदारों ने तशद्दुद करके खातून की दोनों टांगे तोड़ दी हैं और रस्सियों से बांध कर इस खातून पर तशद्दुद किया है। ये वो खातून है जिस पर रिश्तेदारों ने तशद्दुद किया है। सर के बाल भी उतार दिए हैं। पुलिस ने इत्तला मिलने पर खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तशद्दुद की शिकार खातून के अस्पताल में इंसाफ के लिए दुहाइयां। और मिटियारी का इलाका न्यू सईदाबाद, जहां पर गांव गुलाम मोहम्मद उन्नड़ में रिश्तेदारों ने ये खातून पर तशद्दुद किया है और तशद्दुद करने के बाद खातून की दोनों टांगे भी तोड़ दी हैं। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज अली चन्ना, इम्तियाज बताइए क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, ये मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद का नवाई गांव गुलाम मोहम्मद है, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर हुस्ना नामी खातून पर 4 से जायद रिश्तेदारों ने मिलकर इज्तिमाई तशद्दुद का निशाना बनाकर खातून की टांगे तोड़ दी है और उसके सर के बाल मुंडवाकर तजरीर भी की गई है। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सईदाबाद पुलिस ने खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर इस खातून ने दुआइयां देते हुए बताया कि कुछ रोज कबल उनके गांव की एक लड़की एक पसंद की शादी की थी, जिसका इल्जाम उन पर लगाकर उनके रिश्तेदारों ने उन पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब एसएसपी मिटियारी की जानिब से वाकये का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद थाना सईदाबाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 मुलजिमान की जो है तलाश है वो अभी जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज। एफआईए को मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। एफआईए ने मुलजिम अरमगान से तफ्तीश की इजाजत के लिए कराची की अदालत से रुजू किया था। अदालत ने एफआईए को 3 अप्रैल तक मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने हिदायत की कि एफआईए मुकर्ररा वक्त में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। दाखिले के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में ठोस शवाहिद इकट्ठे करने, हक़ाइक़ तक पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कमेटी का इस मामले पर दूसरा इजलास हुआ। कमेटी को मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अब तक की तफ्तीश और पेशरफ्त से आगाह किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात माफियाज और दीगर जराइम पर तमाम तफसीलात से आगाह किया गया। कमेटी ने पुलिस, एफआईए और दीगर इदारों के मिलकर काम करने के इक़दाम को सराहा। कमेटी के अरकान ने आइंदा इजलास के बाद तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा कराने का अदा भी किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान कर दिया। कहते हैं जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा और जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बोलान एक्सप्रेस पहले हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा से मुतालिक तहकीकात के मामले पर अलीमा खानम जेआईटी के सामने पेश हो गईं। ज़राए का कहना है अलीमा खानम को जेआईटी ने आज दोबारा तलब किया था। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खानम जेआईटी के सामने पेश नहीं हुई थी। अलीमा खानम के वकला टीम भी उनके साथ है। जेआईटी सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की 2 दरखास्तें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई को दस्तयाब किताबें फौरन मुहैया करने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बच्चों से फोन पर बात कराने की दरखास्त भी मंजूरी दी। जेल इंतजामिया को फौरी तौर पर बानी पीटीआई के उनके बच्चों से फोन पर बात कराने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया किसी भी कैदी का बुनियादी हक होता है, जेल इंतजामिया अहकामात पर फौरी अमल करे। समात रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार 54 साल घरेलू खातून है। 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समात के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी।
सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने वफाक, वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सदर को बजरिया सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आजम खान ने उमर अयूब और शिबली फराज की दरखास्त पर समाअत की। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। FIA साइबर क्राइम ने सहाफ़ी वहीद मुराद को गिरफ्तार करके पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। ज़राए का कहना है कि सहाफ़ी वहीद मुराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सहाफ़ी का रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम की जानिब से सहाफ़ी वहीद मुराद को गिरफ्तार किया गया था। पीका एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे फारूक इजाज से, बताएगा फारूक। जी बिल्कुल, पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश कर दिया गया है। FIA की जानिब से वहीद मुराद को अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई ईमान मजारी का ये कहना था कि वहीद मुराद को हफ्ते बेजा में रखने की दरखास्त भी दायर कर रखी है। जज अब्बास शाह ने इस्तफसार किया कि वहीद मुराद को कब गिरफ्तार किया गया। FIA की जानिब से अदालत को बताया गया कि गुज़श्ता रात वहीद मुराद को गिरफ्तार किया गया था। FIA की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि PLA और इसके साथ साथ बलोचिस्तान के हवाले से वहीद मुराद की जानिब से पोस्ट की गई थी। FIA की जानिब से यह कहना था कि एक्स और फेसबुक अकाउंट के हवाले से तफ्तीश करनी और इसके साथ साथ वहीद मुराद से मोबाइल भी रिकवर करना है। वहीद मुराद के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की FIA की जानिब से इस्तदा की गई। ताहम वकील सफाई की जानिब से वहीद मुराद के जिस्मानी रिमांड के हवाले से मुखातबत की गई और ये कहा गया कि सहाफ़ियों को जी बिल्कुल, FIA की जानिब से 10 रोज़ा रिमांड की मुखालफत करते हुए ये कहना था वकील सफाई का कि सहाफ़ियों को हरासा करने के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। ताहम अदालत ने पहले ये फैसला महफूज किया था और अब महफूज फैसला सुनाते हुए वहीद मुराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फारूक इजाज तफसीलात के लिए। सहाफ़ी फरहान मलिक समेत 3 मुल्ज़िमान को 5 दिन के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। उन पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी करने का इल्ज़ाम है। FIA ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया था। FIA की इंक्वायरी नंबर 485/2025 में बताया गया कि कराची में डेक्स नामी कंपनी के दफ्तर से गैर मुल्की शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स का खुफिया मालियाती डेटा चोरी करके फ्रॉड में इस्तेमाल करने वाला गिरोह बेनकाब हो गया है। गुलशन इकबाल में वाक़े दफ्तर पर छापे के दौरान मुल्जिमान सैयद मोहम्मद अतीर हुसैन, वल सैयद अफजाल हुसैन सब्जवारी, हसन नजीब आलम और फरहान गौहर मलिक जाली कालों के जरिए गैर मुल्कियों से हसास बैंकारी मालूमात हासिल करते पकड़े गए हैं। मुल्जिमान VOIP सॉफ्टवेयर के जरिए खुद को बैंक नुमाइंदा जाहिर करके मुतासरीन को धोखा देते थे। गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल आलात, गैर मुल्की सार्फिन का हसास डेटा और धोखाधही में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर भी बरामद कर लिए गए। तहकीकात से मालूम हुआ है ये सरगर्मियां फरहान गौहर मलिक की सरपरस्ती में जारी थी। FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के दफात 3, 4, 6, 13, 14, 16 और 26 के साथ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफात 109, 419 और 20 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील मोइज़ जाफरी का कहना है कि FIA फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। अदालती हुक्म के बावजूद फरहान मलिक को जेल नहीं भेजा गया। पहले मुकदमे से जुडिशल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फरहान साहब को अपनी तहवील में ही रखा। जेल कस्टडी करके अगर उस नई FIR के तहत जेल को इत्तला करके उनको वापस ले जाते, ऐसा नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए भी किसी जेल में उनको प्रेजेंट नहीं किया। फरहान साहब के फैमिली मेम्बर्स डिफरेंट जेल्स को चेक करते रहे। ये मनमानी है FIA की तरफ से। आज फरहान गौहर मलिक साहब को मजीद 5 दिन पुलिस की तहवील में दे दिया है, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये ज़िंदगी भर का सहाफ़ी जो है वो एक्चुअली एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का कॉल सेंटर चला रहा था। और जज साहब से हमने इल्तिजा की कि ये अपनी शक्ल पे एक बेसलेस मुकदमा है, बदनीयती पर मबनी है, झूठ पर झूठ है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जवाब जमा कराएं, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB ने जवाब दिया, कराने के लिए वक्त तलब कर लिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے ایڈوکیٹ عبدالرحیم بھٹی اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا. عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کے فیصلوں میں اصول طے کیے جا چکے. عدالتیں بار بار لکھ رہی ہیں لیکن ریاست وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دے چکی. نیب پر پھر اسی طرح کی سفارش کر دیتا ہوں اور پھر نام پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے کہا آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل بھی ملتا ہے. جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت پر سزا سنائی تھی. انٹرا کورٹ اپیل میں وہ سزا گزشتہ سال معطل ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی. ڈپٹی کمشنر کو 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. خبر آپ کو دیں، ملیر ہالٹ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی اور نومولود کی موت کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی ہے. واٹر ٹینکر تیزی سے فٹ پاتھ پر چڑھا اور سڑک کی دوسری جانب نکل گیا، جس سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ جاں بحق ہو گیا تھا. ملیر ہالٹ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. واٹر ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی اور نومولود بچے کی موت ہوئی تھی اور اب اس کی سی سی ٹی وی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اب سامنے آ چکی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ واٹر ٹینکر کتنی تیز رفتاری سے فٹ پاتھ پر چڑھا ہے اور سڑک کی دوسری جانب نکل گیا ہے، جس سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ جاں بحق ہو گیا تھا. میاں بیوی اور بچے کو کچلنے والے ٹینکر ڈرائیور اور ہیلپر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. عدالت نے کہا کہ ہیوی ٹریفک کا ان اوقات میں داخلہ بھی ممنوع ہے. معلوم کریں جس روٹ سے ٹینکر آ رہا تھا وہاں اجازت تھی یا نہیں. ملزم کے خلاف تھانہ ماڈل کالونی میں مقدمہ درج ہے. سپریم کورٹ کراچی میں ٹریفک حادثات پر از خود نوٹس لے. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں اب تک ٹریفک حادثات میں 207 اموات ہوئیں، 2663 لوگ زخمی ہوئے. ملیر ہالٹ پر حاملہ خاتون، شوہر، نوزائیدہ کی المناک موت پر فوری کارروائی کی جائے، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. کچی شراب پی کر مرنے والوں کو معاوضہ دیا جاتا ہے مگر کراچی کے شہریوں کو نہیں دیا جاتا. طاہا احمد نے کہا غیر قانونی ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں لگائی جائیں. ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی، مجرمانہ غفلت پر سخت قانونی کارروائی کی جائے. ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے. ملیر ہالٹ پر بدقسمت واقعہ ہوا، ڈرائیور گرفتار ہو گیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ضمانت نہ ہو اور عدالت سزا دے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم سیاسی تنقید کے بجائے کام پر توجہ دے رہے ہیں. اب تو گورنر صاحب بھی 100 ارب روپے لا کر دے رہے ہیں، ان کے لیے 100 ارب روپے کوئی مسئلہ نہیں. آئینی سربراہ کو سحری اور افطار سے آگے بھی سوچنا چاہیے. وہ شخص اس طرح کی ڈرائیونگ کر رہا ہے نا، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور جو ملیر کے اندر ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا بدقسمت، وہ بندہ گرفتار ہوا نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ریاست کہ نہ اس کی بیل ہو اور عدالت اس کو سزا دے. کہ ہم شہر کراچی کی خدمت کا سوچ رہے ہیں، ہم صرف سیاسی تنقید کا نہیں سوچ رہے. اب تو گورنر صاحب بھی ماشاءاللہ 100 ارب روپے لا کے دے رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ میں سارے اختیارات دے دوں گا، اور دوسری طرف وہ خود اختیارات کی بھیک مانگ رہے ہیں، فلاں کو میرے انڈر کر دو، فلاں کو میرے انڈر کر دو. آئینی سربراہ کو شہری افطار کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے. انہوں نے تو ایک سیاسی بیان دیا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، اب میں آ گیا ہوں اور میں بھولنے نہیں دوں گا ان کو. تو یار 100 ارب تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آخر میں کامران صاحب خود ہی اپنی چیک بک نکال کے 100 ارب روپے ٹرانسفر کر دیں گے. محکمہ تعلیم سندھ نے اسکولوں میں اساتذہ کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا. خواتین اساتذہ کو زیادہ میک اپ نہ کرنے اور مرد اساتذہ کو ٹی شرٹ اور جینز پہن کر اسکول آنے سے منع کیا گیا ہے. محکمہ تعلیم سندھ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ خواتین اساتذہ ہائی ہیلز پہن کر اسکول نہ آیا کریں. زیادہ زیورات پہن کر اسکول نہ آنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے خواتین اساتذہ معمولی لوازمات کے ساتھ روایتی لباس کا انتخاب کریں. اساتذہ کو اسکول کے احاطے میں منشیات جیسے گٹکا، نسوار، ماوا یا سگریٹ پینے کے قطعاً اجازت نہیں ہوگی. طالب علموں سے ذاتی کام کرانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. خواتین اساتذہ کو گاؤن استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے. جنید اکبر کی زیر صدارت پی اے سی کا اجلاس، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپ لے کر مفروض طلبہ کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا گیا. آڈٹ حکام نے اعتراض اٹھایا کہ سرکاری وظیفے پر باہر جا کر پڑھنے والے واپس نہیں آتے.
सरकारी वज़ाइफ पर जाने वालों से 1.5 अरब रुपए वसूल करने हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ये सरकारी वज़ाइफ पर बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पढ़ने की बजाय बाहर जाकर नौकरियों में लग जाते हैं। सरकारी वज़ाइफ पर पढ़ने की बजाय नौकरियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी वजीफे पर मफरूर तलबा के नाम मीडिया में शाया करें। सरकारी वजीफे पर मफरूर तलबा के पासपोर्ट मंसूख किए जाएं। सरकारी वजीफे पर मफरूर तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करें। हंगू के इलाके शनावड़ी में रात गए CTD पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। कलादम TTP का अहम कमांडर सईद वल सनत खान हलाक हो गया। पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ों पर फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकार कुदरतुल्लाह की शहादत में भी मुलव्विस था। दहशतगर्द से क्लाशनकोफ, 2 दस्ती बम और अफगान सिम कार्ड बरामद हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास हुआ। KP में अमन अमान के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। एक्शन प्लान में 18 मौज़ूआत पर 84 इक़दामात तजवीज़ किए गए। एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मुतालिका महकमों और वफाकी इदारों को टाइमलाइंस के साथ जिम्मेदारियां तफवीज़ की गईं। मुनशियात, असलहे और दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकने के लिए तमाम ट्रांजिट पॉइंट्स पर जदीद स्कैनर्स की तनसीब होगी। सनतों में नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ज़म अजला में मुनाफा बख्श फसलों की काश्त को फरोग दिया जाएगा। सूबे भर में फीसलेस कोर्ट्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में शिकस्त दे दी है। मेजबान न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली है। 129 रन का हदफ बासानी 11वें ओवर में हासिल किया है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, क्या इसी नतीजे की तवक्को थी आपको मैच और सीरीज में? बिल्कुल इसी तरह की तवक्को थी। जिस तरह पहला मैच शुरू हुआ था 91 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी, आज भी पाकिस्तान ने सिर्फ 128 रन बनाए और 10 ओवर में ही, जैसे पहले मैच में किया था न्यूजीलैंड ने, 10 ओवर में उन्होंने स्कोर पूरा कर दिया। चौके छक्कों की बारिश कर दी। बड़ी वीक पाकिस्तान की बॉलिंग रही। सिर्फ 3.3 ओवर में न्यूजीलैंड के 50 रन हो गए थे और फिर उन्होंने आज अपनी T20 की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर किया पावर प्ले में। 92 रन सिर्फ 6 ओवर्स में बनाए और टिम साइफर्ट ने जिस तरह बैटिंग की, 38 गेंदों में 97 रन नॉट आउट, 6 चौके, 10 छक्के, तो बहुत ही सिस्टम, दोनों सिस्टम, जिस तरह न्यूजीलैंड का सिस्टम है और जिस तरह पाकिस्तान का सिस्टम है, इस पूरी सीरीज में नुमाया फर्क नजर आया। पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ही खराब है। पाकिस्तान की टीम वीक थी, ना तजुर्बेकार थी और वहां की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं खेल सकी और इसीलिए आज पाकिस्तान 8 विकेटों की शिकस्त के साथ सीरीज 4-1 से हार गया है। तो शाहिद साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम ना तजुर्बाकार थी। ये टीम तजुर्बाकार बनेगी कब? ये तजर्बे कर करके फिर बनानी पड़ेगी। अगर इसी तरह से पाकिस्तान में की क्रिकेट चलती रही तो पाकिस्तान की रैंकिंग भी खराब हो जाएगी। अभी एशिया कप है सितंबर अक्टूबर में, फिर उसके बाद फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान को तजर्बात नहीं करने चाहिए। कुछ प्लेयरों को साथ लेकर, इन्हीं प्लेयरों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कुछ 1-2 प्लेयर जो इंजरी से वापस आ रहे हैं, साइम अयूब और फखर जमान, इनको वापस टीम में लाना होगा। बाबर और मोहम्मद रिजवान के बारे में फैसला करना पड़ेगा। तो ये सीरीज भी तजर्बात की नजर हो गई। आगे भी अभी बांग्लादेश की सीरीज है और 2-3 और सीरीज है, उनमें भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। साबिक कप्तान निदा डार को ड्रॉप कर दिया गया। ओपनर शवाल जुल्फिकार की 2 साल बाद टीम में वापसी। क्वालिफाइंग मरहला लाहौर में होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट से 3 टीमें इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हो गई। तफसीलात बता रहे हैं AY न्यूज की नुमाइंदा इशरत खान।
कराची में बसने वाले परदेसी है वो अपनों में ईद मनाने के लिए बेकरार है और पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो ईद स्पेशल ट्रेन निकाली गई है, आज कैंट स्टेशन से पहली ईद स्पेशल परदेसियों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। इस ट्रेन में जो मजमूई मुसाफिरों की तादाद है बैठने की वो 1062 मुसाफिरों पर महदूद है, जबकि 16 कोचेस पर ये ट्रेन मुश्तमिल है, जिसमें से 2 AC बिजनेस, 2 AC स्टैंडर्ड और जो 10 है वो इकोनॉमी क्लास पर है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन है वो कराची से रावलपिंडी जो कि 27 मार्च को जाएगी, जबकि जो तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन है वो कराची से लाहौर 28 मार्च को जाएगी। इस वक्त चूँकि पहली ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है और मुसाफिरों को लेके लाहौर के लिए, और मुसाफिरों का यही कहना है कि जो ईद का मज़ा है वो हम अपनों में लेंगे। जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहाउस का कहना है वक्त आ गया है अफगान हुकूमत इस संगीन मसले का फौरी हल निकाले। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद हैं। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में इंसानी बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं। सीमा बहाउस का कहना है अफगानिस्तान में लड़कियों को तालीम से महरूम रखना नस्लों तक असरात मरतब करेगा। अफगान उबूरी हुकूमत लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस जाने की इजाज़त दे। भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। भारत को ड्रोन और दीगर हथियारों की फराहमी का भी असर और जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदारों को APC में क्यों बुलाएं। कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। जिस शख्स ने 75% वोट लिए उसे बाहर नहीं रखा जा सकता। लोग मुहर्रिक हैं मौजूदा सियासी बहरान के, उनको क्यों बुलाया जाए। जब वो कौमी सलामती के नाम पर 2 रोज पहले इकट्ठे हो रहे थे, देने की पोजीशन में हमेशा हुकूमत होती है। वो एक बिगनिंग कर सकते थे, इमरान खान साहब को पैरोल पे रहा करते या हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते ताकि एक फिजा बन पाती। जब उन्होंने नहीं किया तो मौज करें सर। जिस आदमी ने 70-75% वोट लिया सर, आप उसके बगैर ये मसला कैसे सेटल करेंगे। कोई भी शख्स पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, लेकिन इसका इतलाक हर शख्स पर है। रावलपिंडी की विमेन यूनिवर्सिटी में सानिया जाफर एक्सप्रेस के मुतासिरीन से यकजहती के लिए अमन वॉक हुई। शुरका ने सानिया जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दी की मजम्मत की। अमन वॉक में मुख्तलिफ शोबाजात के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असातिज़ा का कहना था कि मुल्क में अमन के लिए शिद्दत पसंदी का खात्मा जरूरी है। मुल्क को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तलबा ने शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। इस आज़म का इयादा किया कि वो मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 34% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 बरस से कम है और वो काम काज के घर से घरेलू गुलामी के शिकंजे में जकड़ी हुई हैं। 12 मिलियन के करीब बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ तादाद को जाहिर नहीं करते बल्कि हमारी आंखों के सामने होने वाले कौमी सानहे की हैसियत रखते हैं। लेकिन कोशिश और यकीन के साथ तब्दीली मुमकिन है। पार्को ग्रोन लिमिटेड इस तब्दीली की जानिब बढ़ रहा है। 2021 में पार्को ने पाकिस्तान में बतौर पहली ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सर्विस स्टेशन पर खवातीन और अफराद को अपनी टीम का हिस्सा बनाकर इस रिवायती फरसूदा सोच को खत्म किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR1।